Hello and welcome to We Learn. This is session 2 of Indian Contract Act 1872. Topics to be covered: nature and essentials of contract, essentials of valid contract, offer and acceptance, requirement of valid offer, acceptance, capacity to contract, communication of offers, acceptance and revocation, when does an offer comes to an end, consideration, exceptions, communications of an offer, acceptance and revocations, legal rules as a consideration. Yes, in this session we will now going to have a very detailed understanding about the इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जैसे कि फर्स्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक बहुत ही ब्रीफिंग ली थी और एक सम अप आइडिया हम लोगों ने जनरेट किया था. नाउ वी विल कम विद अ वेरी डिटेल आइडियाज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? इन अ ऑर्डिनरी सेंस कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट इन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन. कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो दो लोगों के बीच में किसी भी तरीके का एग्रीमेंट होता है. So the legal of a contract seeks to regulate the behavior of a person who make the contract so that any conflict arises between these person later may be resolved. तो हमेशा एक जब भी किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस हमेशा होती हैं. इसका पर्पस ये होता है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को करते वक्त किसी भी तरीके के इश्यूज़ या कन्फ्लिक्ट दो पार्टीज़ के बीच में राइज अप होते हैं तो वो बहुत जल्दी हैंडल अप हो जाएं. So in that case, that is why in Constitution, Contract Act is defined under the Section 2H, and it is defined as it's an agreement which is enforceable by law is a contract. वो agreement जो कि lawfully enforceable होता है वो contract होता है. So in that case, we can say that C makes an agreement with D to sell him some good for rupees 25,000. इन दैट टर्म्स कि एक अगर सी किसी भी तरीके के एग्रीमेंट पर आता है कि डी उसके साथ एक सम अमाउंट ऑफ गुड्स जो है वो सेल करेगा उसे, तो दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन है. When it comes to for example, like if B invites a friend S to the dinner and he makes elaborate preparations, S failed to turn up for a dinner and all the preparations made by B go waste. Since this was not a contract between the party, B cannot take S to the court for the legal actions against him for breaking the commitment to come for the dinner because it's just only an agreement. इससे पहले जो एग्जाम्पल स्टेट किया गया था वो एग्जाम्पल सिर्फ एक एग्रीमेंट के बारे में एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशंस के बारे में बात कर रहा था. बट दिस एग्जाम्पल लाइक समबडी इनवाइट्स यू फॉर द डिनर, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एन agreement. So how could it be said that the above was not in a contract although it was clearly agreement between two the people? But yes, a valid contract is what which is enforceable by law. जब तक एक कॉन्ट्रैक्ट में लॉ इन्फोर्सेबल नहीं होता है तब तक एक एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन. सो व्हाट इज एन एग्रीमेंट? इट इज कुड बी एनी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. अगर एग्रीमेंट की बात हो तो किसी भी तरीके का प्रपोजल, देयर एक्सेप्टेंस इज कम्स इनटू द एग्रीमेंट. यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोज करता है एंड देन द अदर पर्सन वुड एक्सेप्ट इज, दैट मीन्स कि उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है. So must be between the two persons and one is making offer and another is accepting this offer. Now intentions to create the legal relationships. जब किसी भी तरीके की legal relationship ये validity of contract में है. The other thing is what कि contract हमेशा एक legal intentions या legal relationships create करने के लिए बनना चाहिए. उसके obligations ऐसे नहीं होनी चाहिए कि उससे किसी तरीके का harm या illegal functions उसमें performed हो. So in that comes into the intentions to create the legal relationship. So court would like to measure the degree of seriousness and not every lost conversation on the exchanging part. Then competencies of party, that means everybody is able to make the contract except the minors. So person of the unsound mind, person who are disqualified by any other law is what is the comes into the पार्टीज ऑल्सो. यानी कि तो थर्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है दैट इज़ द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ पार्टीज. पार्टी कितनी कॉम्पिटेंट है ये भी देखना है. पार्टी माइनर नहीं हो सकती है, अनसाउंड माइंड की नहीं हो सकती है, और अगर लॉ से भी डिस्क्वालीफाइड है तो भी वो किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकती. कंसिडरेशन, येस, समथिंग मस्ट बी इन रिटर्न. एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन रिटर्न कुछ होना. फ्री कंसेंट, if the party makes the agreement without any kind of a pressure or misguide, it's a free consent. यानी कि आप किसी भी प्रेशर में आकर या किसी भी मिसगाइडेंस में आकर किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू वांट इट. सो वो एक फ्री कंसेंट होता है और इन दैट केस इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड कि पार्टीज़ के बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए.
another is the lawful objective and consideration. That means contractors always have a lawful obligations. Like if the I will kill you, Mr. X, if you will give me 1,000 bottles of wine. So in that case, this is what, कहीं भी इसमें कहीं लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं आ रही हैं. सो ये एक किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया है, एंड इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड void. Void is, yes, we all know that, cancelled. So agreement always void without legal effect because of their nature. So in that case, made without consideration is again a void. So अगर आपका किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी भी विदाउट कंसिडरेशन पर बनता है या इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट, तो इट कुड बी void. सर्टन फॉर्मेलिटीज़ ऑल्सो, येस, जब भी किसी तरीके के लॉज या फॉलो किए जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी फॉलोड, तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. जैसे इट शुड बी रिटन, it should be according to the government laws. So इस तरीके के formalities would be followed by the companies. Now what is offer and acceptance? Offer is what when something is given to be offered. अगर आपको कोई चीज़ proposal या आपको कोई चीज़ offer की जाती है, so वो offer होती है. So in that case, yes, making a proposal from one person and the other will accept this proposal is basically an offer. So agreement is always offer plus their acceptance. What basically are constitute state about the proposal and offer? Under the section 2A, it's defined in an offer in these words. When a one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, with a view to obtaining the assent or that other to such act or abstaining, he said to make a proposals. When person is getting an initiative or a willingness to do something or promise to do something, so in that case ये एक offer या एक proposal माना जाता है. अब किस तरीके से एक valid proposal बनता है? For valid proposal, yes, offer must be expressed and implied. It must be made in a manner which leave no doubt. आपकी ऑफ़र जो है या तो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, बट येस एट द सेम टाइम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसके अंदर किसी तरीके की कन्फ्यूजन हो. एक्सप्रेस ऑफर होती है जो आप बोलकर या लिखकर बताओ, दैट इज़ व्हाट द एक्सप्रेस इज, और इम्प्लाइड ऑफर इज व्हाट विच इज़ इम्प्लाइड वन. Now, and second point is what? Offer must intend to create a legal relationship. Offer भी हमेशा एक legal relationship के को ध्यान में रखकर ही बननी चाहिए. Offer must be certain and not vague in the meaning. Offer किसी भी तरीके से unrealistic नहीं होनी चाहिए. Offer must be defined and have a very good clear meaning. Offer must be specific or general, and there must be the destinations of the offers also. Yes, in that case हमारी offers जो होती हैं वो specific भी हो सकती है, यानी कि individual person के लिए, या फिर जनरल भी हो सकती है, कॉमनली सबके लिए. देन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. पता होना ज़रूरी होना चाहिए कि ये इस तरीके की ऑफ़र है, तो कम्युनिकेटेड. ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इन्विटेशंस टू दी अदर. एट द सेम टाइम डिस्टिंग्विश्ड होनी चाहिए ऑफर. नाउ व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इन्विटेशंस टू द ऑफर एंड जनरल ऑफर? इन्विटेशन होता है एम एट टेकिंग द कस्टमर टू द एडवर्टाइजर टू स्टार्ट नेगोशिएटिंग. दिस इज व्हाट द इन्विटेशन. जब आप किसी तरीके की एक इनिशिएटिव लेते हो, दैट पर्सन विल स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद यू, ये इन्विटेशन टू ऑफर होता है. At the same time, general offer is what? It aims at leading the offeree to perform of a specified condition which was amount to acceptance of the offer. यानी कि वो पर्सन जो कि ऑफर को बना रहा है वो किसी एक स्पेशल कंडीशन या स्पेसिफाइड कंडीशन में जब ऑफर क्रिएट करता है तो वो जनरल ऑफर होती है. Another, an offer should not contain a term forcing an action on offeree. जैसे B tells S that case no reply is received from S within that 7 days, so it will treat it as the acceptance of his offer. तो इस तरीके की बाउंडिंग्स नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑफर में कि 7 days तक रिप्लाई नहीं आया तो इट इज़ कंसिडर्ड एज येस. So that comes into the validities of offer. Another is acceptance. Acceptance is what? When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be acceptance. जब एक person होता है, जब किसी भी तरीके का proposal बनता है, तो उस केस में ये एक acceptance में काउंट होता है. सो अ प्रपोजल व्हेन द एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस. अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है. सो व्हाट आर द वैलिड एक्सेप्टेंस? सबसे पहले बाय अ प्रॉपर पर्सन. द प्रॉपर पर्सन टू एक्सेप्ट द ऑफर इज वन टू whom it is targeted for or cannot be forced to be bound in the contract within a person. Yes, at the same time acceptance एक within a time period बनना चाहिए.
एंड थर्ड इज इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड. मेंटल डिसेप्टेंस इज ऑन दैट साइड. दैट मीन्स अगर एक तो बताया जाना चाहिए, ऊपर से सामने वाला अग्री होना चाहिए उस एक्सेप्टेंस के लिए. मस्ट बी गिवन दी प्रॉपर मोड, और जो भी तरीका डिफाइन किया होता है एक्सेप्टेंस का, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट भी करना चाहिए. And yes, another is acceptance must be succeed the offer. Two identical cross offers cannot force an agreement. So in that case, this is very true that acceptance is what the two identical offer जो है वो किसी तरीके के agreement form out में नहीं होंगे. Like if the one person accepts the another's offer, so that doesn't means कि वहाँ पर किसी और तरीके की offers भी हों और वो accept भी हों. देन ऑफर वंस रिजेक्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अगैन. एंड येस, अगर किसी भी तरीके की ऑफर बनी थी एंड इफ इट्स रिजेक्टेड तो उसकी दोबारा एक्सेप्टेंस नहीं होगी. As we can state in that example also, that B is offering the job to H on the 7,000 per month, but no, I want 8,000 per month, S says. So B refused. So S says, all right, I will work for the 7,000. So B says, I am not interested in you. So this is what now, in this scenarios, now B is not ready to take that person on the job. Now what communication of an offer and acceptance and revocation? When it comes to the communication of offer, in this, basically an offer is said to have been made when it comes to knowledge of the offer other person to whom it was intended. यानी कि communication of offer वो होता है जब आप एक offer जिस person के लिए होती है उसे वो बना कर देते हैं. So that comes into the communication of an offer. Now what is communication of acceptance? It is what offeree transmit his acceptance to the offeree in terms of जिसने offer create की है उसे बताना that yes you were accepting that particular ऑफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. जब वो एक मैसेज पहुंचता है ऑफर तक तभी वो एक एक्सेप्टेंस कहलाती है, नहीं तो अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस नहीं होती. सो इन दैट केस थर्ड थिंग विच इज कम्स इन टू द पिक्चर, दैट इज वॉट कम्युनिकेशंस ऑफ रिवोकेशन. दैट इज वॉट this rule is basically provides that a proposal must be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete from the acceptor as against the proposer but not afterward. in terms of कि प्रपोजल जो है वो किसी भी टाइम पर रिवोक कर लिया जा सकता है, यानी कि बंद कर दिया जा सकता है कि ऑफ़र आपके लिए थी पर अब नहीं है. सो इन दैट केस कभी भी उस ऑफ़र को वापस लिया जा सकता है. सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम. अगर तो उस ऑफ़र को रिवोक करने से पहले एक्सेप्टेंस हो जाती है देन इट्स नॉट, बट उसके बाद यानी कि उसके रिवोकेशन के बाद एक्सेप्टेंस नहीं की जा सकती. Then loss of letter of acceptance is a postal transit. Acceptance is complete as against the offerer as soon as the letter of acceptance is posted. This was the example in the revocation of कि एक लेटर एक्सेप्टेंस का जो था वो ट्रांजिट में गुम हो गया. इन दैट केस एक्सेप्टेंस हुई ऑफरर की तरफ से, but the contract is not completed yet, even the acceptance lost in the post. But it is important that the letter of acceptance correctly addressed, significantly stamped and posted. क्योंकि वो एग्रीमेंट अभी इसलिए नहीं, यस उसे एग्रीमेंट कंसीडर किया जाएगा क्योंकि एक पर्सन ने मान लिया कि उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है. When does an offer comes to an end? कब एक ऑफर जो है वो ख़त्म हो जाती है. Offer comes into end when an offer comes to the two revocation or lapse. That is revocation or lapse of withdrawal of the offer. Revocation that means कि वो आप वापस ले ली गई ऑफर. सो उसके एक्सेप्टेंस से पहले ही उसको अगर वापस ले लिया जाए दैट इज़ रिवोकेशन. बाय लैप्स ऑफ टाइम दैट मीन्स कि आपको टाइम दिया गया था 5 दिन का कि 5 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू एक्सेप्ट दिस ऑफर और वो लैप्स हो गई. सो दैट कम्स इन टू लैप्स ऑफ टाइम. Another is by non-fulfillment of condition of offering. Offering ने जिस तरीके से conditions रखी थी about it could be any condition of a offer. ऑफर की जो भी कंडीशन है अगर वो रिजेक्ट हो जाती है या वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस केस में भी ऑफर ख़त्म हो जाती है. Now, when does an offer comes to an end? By the or other reasons are of ending the offer is by the death of offerer. जिसने ऑफर दिया उसकी डेथ हो गई. इफ द काउंटर ऑफर इज मेड, अगर किसी भी तरीके की काउंटर ऑफर हो जाती है. काउंटर ऑफर इन टर्म्स ऑफ कि आपने ऑफर दिया किसी को एंड उस सेकेंड पर्सन ने आपको ऑफर दी दिया. दिस इज व्हाट काउंटर ऑफर.
और इफ़ द ऑफर इज़ नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड, और अगर ऑफर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड मोड के हिसाब से नहीं एक्सेप्ट की गई है या लॉ चेंज हो गए हैं. सो दिस इज़ वॉट दी कम्स इन टू दी एंडिंग ऑफ एन ऑफर. ना रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ऑफ़र को एंड करने का, कि ऑफरी ने ही रिजेक्ट कर दिया ऑफ़र को. दैट इज़ एक्सप्रेस रिएक्शंस बाय वर्ड और स्पोकन. उसने रिजेक्शन ही लिख दी कि हाँ वो ये पर्टिकुलर ऑफ़र को अब नहीं लेना चाहता. या इट्स अ इम्प्लाइड रिजेक्शन, लाइक व्हेन ऑफरी मेक एन अ काउंटर ऑफर और ऑफरी मेक एन अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस, या एक प्रिस्क्राइब टाइम में रिप्लाई नहीं करता, तो ये इम्प्लाइड है कि हाँ ऑफ़र ख़त्म होगी. सो एक्सप्रेस रिजेक्शन और इम्प्लाइड रिजेक्शन दोनों अगर हो सकते हैं. Now, what is consideration? As in the previous session, we already discussed, consideration is what something in return. जब किसी भी तरीके की डीलिंग्स जो होती हैं वो इन एक्सचेंज होती हैं या इन रिटर्न कुछ आता है. So, according to section 2D, it is what when at the desire of a promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does not abstain from doing, or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstain of a promise is called the consideration of offer. उसे consideration of offer कहा जाता है. Now, what are the legal rules of consideration of offer? Consideration of offers के क्या legal rules हैं? Legal rules में सबसे पहले है consideration at a desire of a promiser, that is A save B's goods from fire without being asked to do so. So A cannot demand payment for his service. दैट इज़ वॉट कंसिडरेशन एट डिज़ायर ऑफ अ प्रोमिसर. अगर प्रोमिसर की डिज़ायर पर ही अगर किसी तरीके की कंसिडरेशन है, सो उस केस में भी देयर वॉज एन लीगल रूल ऑफ द कंसिडरेशन. देन कंसिडरेशन फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. अगर कंसिडरेशन प्रोमिसी या किसी अदर पर्सन से होती है तो उस केस में भी इट इज़ कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑन दैट. लाइक इज पास्ट, इट इज़ वॉट अ फर्म of A find B's son and B promises to pay ₹1,000. So that is what the past one. Present में at the time of making a promise, or in future the promises to deliver the goods when the ship arrives to the particular position. So that comes into the future part. Now exceptions are basically बहुत से ऐसे exceptions होते हैं जिसकी वजह से एक ऑफर या ये कह सकते हैं कि कंसिडरेशंस नहीं आकर होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल लव एंड अफेक्शन. इफ देयर वाज अ लव एंड अफेक्शन तो उस केस में कंसिडरेशंस नहीं होंगे तो भी इट इज़ कंसीडर्ड. जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल, अ फादर प्रॉमिस टू पे हिज सन ₹1,000 आउट ऑफ अफेक्शन एंड लव एंड रजिस्टर इट. सो इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, बट येस इट इज़ डन बिटवीन इन अ लव एंड अफेक्शन रिलेशनशिप. सेकेंड इज़ वॉट कंपनसेशन फॉर वॉलंट्री सर्विसेज. अगर किसी भी तरीके की वॉलंट्री सर्विसेज हैं तो वॉलंट्री सर्विसेज जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स फाइंड वाई पर्स एंड गिव इट टू हिम. सो वाई प्रॉमिस टू गिव ₹50. दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. सो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बट इट्स अ वॉलंट्री. ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलरली उस पर्सन को चूज़ किया गया था. एंड देन प्रॉमिस टू पे द टाइम बेरर डेबिट. अगर किसी भी तरीके का टाइम बेरर डेबिट भी होता है तो उस केस में भी कंसिडरेशंस होनी ज़रूरी नहीं है. Then capacity to contract. Capacity to contract is again one of the important part to consider. This is what वो person जो कि नॉर्मल पर्सन, और वी कैन से दैट जो साउंड माइंड के होते हैं, जो मेजॉरिटी स्टेज पर होते हैं और लॉ से भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होते हैं, वो सारे पर्सन जो हैं वो एक कम्पिटेंट होते हैं किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए. सो कम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ व्हाट द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी. दैट इज़ वाई जो पर्सन किसी भी तरीके से माइनर है, या दे आर पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड, या दे वर द पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी अदर लॉ, सो वो पर्सन जो होते हैं वो किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते. For example, minors are what? The person who has not completed has his age of 18 years, जिसने अभी तक 18 years की एज को अचीव नहीं किया होता है, तो वो किसी भी तरीके की कंसिडरेशंस में नहीं आ सकते. सो एज इज़ कंसीडर टू बी द माइनर. सो दिस इज़ व्हाट द एक स्टेटमेंट है माइनर्स की, दैट इज़ व्हाट नो लीगल एक्शंस टेकन अगेंस्ट द माइनर. माइनर के अगेंस्ट किसी भी तरीके का लीगल एक्शंस नहीं लिए जा सकते. दैट इज़ वाई दिस इज़ व्हाट एब्सोल्युटली वॉइड. Agreement with the minor is absolutely void and nullified.
Like for example, minor taken a loan of rupees 20,000 from the money lender and put the mortgage of his house in the favor of a money lender. So later the minor started an action to get the mortgage cancelled. So in that case किसी भी यहाँ पर जो mortgage का जो या लोन का जो पूरा प्रोसीजर बना ये शुरू से ही वॉइड था, बिकॉज द पर्सन इज एन अ माइनर. तो उस केस में पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया जा सकता. देन अग्रीमेंट और अग्री में बी इन्फोर्स्ड फॉर अ माइनर्स बेनिफिट. अगर किसी भी तरीके के माइनर्स बेनिफिट में अग्रीमेंट है तो दैट इज अगेन कम्स इन टू दैट कॉन्ट्रैक्ट पैक्ट. लाइक अ माइनर मे गिव अ लोन टू अ पर्सन and borrowed may refuse to return money on the ground that agreed is the void. In terms of कि अगर माइनर चाहे तो लोन उठा सकता है पर उस लोन के वो पैसे ना दे, बिकॉज ये कहकर कि येस द पर्सन इज़ अ माइनर और उस केस में किसी भी तरीके की लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती. दैट मीन्स माइनर इज़ ऑलवेज ऑन द बेनिफिशरी पार्ट. सो बेनिफिशरी एरियाज हमेशा माइनर के कंसीडर किए जाते हैं. Rule of estoppel does not apply against the minors also. Like if minor mislead the other party to believe that he is the majority age and then some benefits get under an agreement, so he will be permitted to deny later the fact that he was minority of an age. So he will have no legal towards the other parties. दैट इज़ वॉट कि अगर माइनर किसी तरीके से पर्सन को मिसलीड कर रहा है ये कहकर कि हाँ वो मेजर है, और बाद में वो इस फैक्ट को भी डिनाई कर सकता है कि नहीं वो मेजर नहीं वो माइनर है, बट दैट इज़ अगेन द सेम थिंग कि उस पर किसी तरीके की लाइबिलिटीज़ नहीं है. सो दिस इज़ वॉट बेसिकली अ माइनर पार्ट. Now to do, there are some questions which you have to do it yourself. First is explain the different elements of a contract. आपको बताना है कि elements of contract क्या होते हैं and what is the agreement and how it is different from a contract. Agreement क्या होता है और वो कैसे contract से different है. So yes, this is all about for the today's session. We were winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.